Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Once again, we are diving into a section over active and passive voice. We have completed all the categories under different tenses. Some of the important steps to be marked, which we'll be discussing today. So here you can see the title, that is sentences with two objects. Yes, we have taken some examples in midway when we were discussing uh, the different tenses. But here particularly you can see that when there is the case with two objects, what we can do. Either we need to pick one of the objects and then we need to go with that, making the sentence into passive form. So here you can see first example is he gave me a book. So you can find there are two objects. First one is me and second one is a book, right? So either it can be made with a book or it can be made with the object, that is me, that will be converted into a subjective case that will become I. So here you can see two responses, and these are: a book was given to me by him. When we are taking a book as an object and when we are giving priority to a book, we will take it in the beginning, making it subject. But when we are giving the priority to the personality whom we give the book, and there we see me is taken as the main object, and when we are taking me as a main object, when we give priority to this, that converts into I, and the sentence becomes like this: I was given a book by him. So both of them are possible. So in the case of two objects in a sentence of active form, we may make two sentences. It depends on the priority we are giving to. Second example is I told them a story. So here we can see once again there are two objects. First one is them and second one is a story. When we are taking a story, then we will make like this: a story was told to them by me. A story was told to them by me. You can also say a story was told them by me. That can also be correct. Why we have told here to? Um, I told you when I gave you example of talk to or talk with. When something is one direction, we may use to. To shows direction, like a story is told by someone and there we did not interrupt, right? And in between, if we are interrupting, there you can, in that case, you can say, okay, in general way, told them can also be heard. So as a story was told to them by me, that's correct. Even that would be also correct. A story was told them. But why we are saying to? Why we are giving priority to this? Because it is directional. There were some people, to them the story was told. That is the reason we are adding additional to here. Okay. So a story was told to them by me. That is the first priority. Or second one, when we are taking them as a main object, when we are giving priority to they, then it will become like they were. Them is converted into they, of course. So they were told a story by me. Okay, now let us talk about these sentences in Hindi. What will be the difference? तो पहले एग्जांपल में हमने देखा कि ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी. अगर हम बुक के साथ जा रहे हैं तो इसका अर्थ होगा एक किताब दी गई मुझे उसके द्वारा. मुझे एक किताब दी गई है ना. एक किताब मुझे दी गई उसके द्वारा. एक किताब मुझे दी गई उसके द्वारा. दूसरा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम. मुझे एक किताब दी गई उसके द्वारा. आप देखेंगे दरअसल में हिंदी दोनों ही एक ही ओर इशारा कर रहा है ना. तो इसलिए ये पॉसिबल है. ऐसे ही आप उसमें देखेंगे आई टोल्ड देम अ स्टोरी, पहला है. तो आई टोल्ड देम अ स्टोरी का हिंदी क्या होगा? मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई. अब एक कहानी उठा रहे हैं, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू देम बाय मी. एक कहानी सुनाई गई थी उन्हें मेरे द्वारा. एक कहानी उन्हें सुनाई गई थी मेरे द्वारा, या एक कहानी उन्हें मेरे द्वारा सुनाई गई थी. और दूसरा है दे से शुरू किया, दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी. उन्हें एक कहानी सुनाई गई थी मेरे द्वारा, या फिर उन्हें मेरे द्वारा एक कहानी सुनाई गई. आप देख पा रहे हैं कि
हम चाहे कैसे भी इसको बोल रहे हैं, सेंस एक ही बन रहा है, इसलिए दोनों ही हमारे साथ। ठीक है। तो जब ये केसेस होंगे व्हेन यू फाइंड टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, आइदर यू टेक फर्स्ट वन और सेकंड वन, बोथ विल बी ओके इन पैसिव फॉर्म। ओके। बस ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करेगा किसको आप रखना चाहते हैं आगे। लेकिन हिंदी तो सेम ही होने वाली है ना। मतलब सेंस एक ही होने वाला है, बट ये है कि आपने एम्फसाइज कर दिया उसको आगे रख करके, कि आपने उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया है एक तरह से सेंटेंस। ठीक है। तो ये केस है। नाउ सेकंड थिंग, सेकंड चीज पर हम बात करें उससे पहले आप कुछ एग्जांपल कर लें इसमें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप समझ पाए हैं। सो tenses we have done, all in all the tenses we have completed passive voice, तो हम किसी भी सेंटेंस में ले सकते हैं, किसी भी टेंस का ले सकते हैं। आप मुझे बताएंगे, they gave me some uh, toffees, they gave me some toffees, convert it into passive voice। they gave me some toffees, यहाँ पर me भी ऑब्जेक्ट है और some toffees भी ऑब्जेक्ट, और gave me यानी सेकंड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट का है, बनाएंगे जल्दी। they gave me some toffees, सिंपल पास्ट में क्या होता है, वॉज वर, इस बात को याद रखना। दे गेव मी सम टॉफीज, यस यू आर डूइंग इट, आपने किया है सम टॉफीज, टॉफीज के साथ वर आता है लिटरली। टॉफीज वर गिवन टू मी, जरूर करेंगे कृष्णा जी, टू मी, यस अनामिका जी आपने वर किया है लास्ट में नीचे। सम टॉफीज वर गिवन टू मी बाय देम, यस सम टॉफीज, अभित्री जी वर, सम टॉफीज वर गिवन टू मी बाय देम, यहाँ पे भी देखिए टू लगा दिया, प्रायोरिटी हमने दी, बहुत सही किया आपने, है ना। क्यों? क्योंकि वो मुझको दी गई है, एक डायरेक्शन से आई है एक चीज और मुझे मिल गई है ना। मुझको, जैसा था ना मुझको, जहाँ पे को वाला सेंस आता है वहाँ पे टू, जनरली टू एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे मैंने कि उसको, मुझको, तुमको, है ना, तो वहाँ पे टू वाला सेंस आता है। जनरली एक तरह ट्रिक है, तो हर चीज में अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि राम ने रावण को मारा, तो वहां पर किल्ड टू रावण नहीं करते, है ना, राम किल्ड रावण सिंपल। तो सम टॉफीज वर होगा, आर नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट में था। सम टॉफीज वर गिवन टू मी बाय देम, या फिर सम टॉफीज वर गिवन बाय देम टू मी, ये जो जिन लोगों ने किया वो भी मैं ठीक ही कंसिडर कर रहा हूँ, बट फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देना चाहूंगा सम टॉफीज वर गिवन टू मी बाय देम। ठीक है। क्यों? रीजन है इसके पीछे, इसके पीछे रीजन ये है कि हिंदी से समझ में आएगा आपको, कुछ टॉफीज मुझे दी गई थी उसके द्वारा, है ना। आप उसको स्टार्टिंग में हाईलाइट कर देगा, मैंने आपको बताया भी था, ऐसा कोई केस बनता है इवन कॉम्प्लीमेंट जो आते हैं या फिर अदर्स जिसको आप कहते हो, जो ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ होता है, वो जनरली पैसिव वॉइस में जनरली फर्स्ट प्रायोरिटी में यही देते हैं कि वो आपके जस्ट बाद बता लगा दे। हालांकि मैंने बताया कि लैंग्वेज में यूज कर लेंगे बाद में तब भी गलत नहीं है, पर अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है तो जनरल वे में हमें क्या करना चाहिए, वो आपके जस्ट बाद उस कॉम्प्लीमेंट को या उस जो भी चीज आई है आपकी, चाहे दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको लगाना, तो यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो सम टॉपिक्स वर गिवन टू मी, कुछ टॉपिक मुझे दी गई थी, लास्ट में लगाते हैं बाई द, किसके द्वारा, उनके द्वारा। ठीक है। तो ये आपका सही, और सम टॉपिक्स वर गिवन टू मी। मयंक शर्मा जी, आपका, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रहेगी सम टॉपिक्स वर गिवन टू मी बाय द। हाँ सेकंड प्रायोरिटी आप कहना चाहें तो जो होता है ना, कभी कभी लैंग्वेज में कुछ बातें छूट जाती है तो बाद में ऐड करके बता दी, तो उस हिसाब से आपका सही है, सम टॉपिक्स वर गिवन बाय द टू मी, है ना। बट आप खुद देखिएगा, ये अननेचुरल साउंड कर रहा है, सम टॉपिक्स वर गिवन बाय द टू मी, ऐसा लग रहा है कुछ छूटा हुआ बाद में लगाया आपने, है ना।
ओके। जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, सुनिएगा मेरी बात। आपसे मैं पूछूं, मैं जैसे अभी ट्रांसलेशन करता हूँ ना, तो समझाने के लिए कर देता हूँ कोई। मैं ऐसे को ट्रांसलेट करूंगा। कुछ टॉफी मुझे दी गई उनके द्वारा। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको कैसे बोला है, मतलब कोई काव्यात्मक रूप में बोला है क्या? ये तो ऐसा लग रहा है, और मैं इसको ऐसे बोलूं, उनके द्वारा मुझे कुछ टॉफी दी गई थी। ये सीधा है ना? आप देखिएगा दोनों ही सही है। ये वैसे ही प्रश्न हो गया, मैं जो आपने कहा इजेक्ट करेक्ट, ये वैसे ही प्रश्न हो गया जैसा मैंने ये हिंदी में बोला। कुछ टॉफीज मुझे दी गई उनके द्वारा। ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, या फिर काव्यात्मक रूप से बोलेंगे तो कभी बोल देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अगर सीधा बोलना चाहूँ तो सीधा अरेंजमेंट क्या होगा? कुछ टॉफीज दी गई थी मुझे उनके द्वारा के अलावा बोल सकता हूँ। मुझे टॉफीज दी गई थी, मुझे कुछ टॉफीज दी गई थी उनके द्वारा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? ठीक है। या कुछ टॉफीज उनके द्वारा मुझे दी गई थी, ऐसे बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है। तो वही चीज है कि लास्ट में लगाना है, कैसे लगाना है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वाक्य को ले रहे हैं। और हम सही वे में लेंगे तो क्या होगा, हमारा पहले जो है वर्ब के जस्ट बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट को लगाएं। सर आप एरर डिटेक्शन भी बताएंगे क्या? लैंग्वेज जितना नीडफुल है उसके बारे में बात करेंगे। आप क्या हाई स्कूल में? मैं जो भी लैंग्वेज में हमें जितनी बोलने की नीड है उतना हम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ग्रामर में बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि किस तरह से हमने चीजों को किया। अभी आपने अ, एक चीज आपने यहाँ पे की, सम टॉपिक के साथ। दूसरी चीज तक बताइए, ये दूसरी तरह से भी वाक्य बन सकता है क्या? उस तरह से बनाएंगे। एक लोगों ने बनाया था, सावित्री जी ने बनाया है, दोनों बनाया है। सावित्री जी ने किया है, आई वॉज गिवन सम टॉफीज बाई them। जल्दी से बनाएंगे आप लोग। और यहाँ पर टॉफीज की स्पेलिंग कुछ लोग गलत लिखते हैं। जिन लोगों ने लिखा है TOFFES, वो करेक्ट है। सावित्री जी आपने थोड़ा IES। और भी कुछ लोगों ने IS जैसा लिखा है, दीपा जी ने। टॉपिक में सिंपल डबल ई लगा हुआ है, तो IS क्यों लगाएंगे? डबल ई आता है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे एस लगा दीजिए। TOFFES, सिंपल। और ये ई आता है तब भी डायरेक्टली एस लगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी टॉफीज स्पेलिंग सीख लीजिए, बात सही है। तो बताएंगे क्या बनेगा इसका? दे गेव मी सम टॉफीज, इसमें मी को प्रायोरिटी देके बनाएंगे, क्या होगा? स्पेलिंग TOFF, TOFF, डबल एफ भी है और डबल ई भी है। TOFF, गलत बोला हूँ उसमें, सॉरी। TOFF। तो इसका क्या होगा? आई वॉज गिवन टॉफीज। मैंने शायद एक ई बोला था उस टाइम, क्योंकि डबल एफ है तो डबल एफ के साथ फ्लो में निकल गया होगा एक। TOFF है, डबल ई है। आई वॉज गिवन सम टॉफीज बाय देम, यस दैट्स करेक्ट। ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी, दोनों तरह से बन जाएगा ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम यहाँ पे समझेंगे सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स with prepositions used as transitive verbs and they have the passive voice। इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होगा उसमें हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, अब एक एप्लीकेशन यहाँ पे ये है कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब जिनमें prepositions आते हैं उनमें पॉसिबल हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक तरह सेंस के आधार पर ही लेंगे इन चीजों को। जैसे यहाँ पे देखिए, लाफ क्या होता है? लाफ अपने आप में इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। मैं बोलूँ आई लाफ, आप ये नहीं कहेंगे व्हाट डू यू लाफ, आप क्या हंसते हो। या फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि आप किसे हंसते हो, whom डू यू लाफ, है ना? जहां पर क्या और किसी का अर्थ आंसर मिल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? और जहाँ आंसर मिल जाए उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव, मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और जहाँ क्या और किसी का आंसर नहीं मिलता वहां बोलेंगे
इंट्रांजिटिव। तो लाफ मिलना तो क्या का अर्थ में उत्तर मिल पा रहा है ना किसी। जैसे मैं बोलता हूँ आई टीच, तो आप बोलेंगे क्या पढ़ाते हैं, मैं बोलूंगा आई टीच इंग्लिश। आप बोलेंगे किसे पढ़ाते हैं, तो मैं बोलूंगा, आप बोल रहे हैं कि होम ड्यूटी, मैं बोलूंगा आई टीच यू, है ना। तो वो ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ देखेंगे लाफ जो है इंट्रांजिटिव होता है, ऐसा आपको पता है, या आप नहीं पता है तो पता कर सकते हैं प्रश्न करके कि क्या या कैसे, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर ऑल लाफ्ड एट हर, सभी उस पर हंसे। तो यहाँ पर आपको लगा हुआ है एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन जो है इसके साथ हमने बात की यहाँ पर। तो ये जो हर है, हम जानते हैं इसका सब्जेक्टिव केस होता है शी। तो हमने लगा लिया शी वॉज लाफ एट बाई ऑल। तो ये कुछ केसेस होते हैं जहां पर आप यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तरह से आप समझना चाहेंगे तो यहाँ पर भी ये कह सकते हैं लास्ट इंट्रांजिटिव जरूर है, लेकिन हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में किसको ले लिया था, हमने ऑब्जेक्ट के रूप में हर को ले लिया, उसके बाद जो आया। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। और ये पता कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात ये पता कैसे करें। सिंपल सी बात है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप कोई भी चीज देखते हैं कि वहां पर क्या यूज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप सारे कॉन्सेप्ट सारे रूल भूल जाइए, बस ये देखिए आई ऑल लाफ्ड एट हर। अगर मैं हर यानी उसको इंपॉर्टेंस दूं तो मैं क्या बोलूंगा, सी वॉज लाफ्ड एट, उस पर हंसा गया था। लाफ्ड एट का मतलब क्या हो गया, हंसा गया था, किस पर, उस पर। सी वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल, सिंपल सा सेंस बन रहा है, हाँ बोला जा सकता है। तो जहां पर सेंस बन रहा है वहां पर कर लेंगे। ऐसे ये है, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, है ना। जैसे यहाँ पर एग्री भी अपने आप में क्या है, इंट्रांजिटिव। एग्री में व्हाट पूछेंगे, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक वे में क्या ले रहे हैं, माई प्रपोजल को ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर रहे हैं, और दूसरी बात को आप लगा दे रहे हैं कि माई प्रपोजल वाज एग्रीड टू, इस तरह से। इस तरह से आप इसको यहाँ पर ले लेते हैं। तो आप चीजों को देख पा रहे हैं कि जब कभी इंट्रांजिटिव वर्ब आता है और वहां पर कोई आपका प्रेपोजिशन दे रखा होगा जिसमें चीजें बन रही होंगी, तो उसको हम कह देते हैं कि हाँ इसमें पैसे पॉसिबल है, ठीक है। अभी आपको एक चीज याद आ रही होगी जिसको हमने पहले भी कंसिडर किया था एग्जाम्पल, ये वही चीज है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हमने किया था। आपको एक चीज याद आई होगी शायद, टॉक टू। किसी को याद आया फिर टॉक टू। हाँ, अगर मैं पूछूं आपसे टॉक, तो टॉक क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, अगर इसमें भी अगर आप बात करना चाहें। अगर हम इस हिसाब से कंसिडर करेंगे तो टॉक हमारा क्या होगा, जैसे प्रश्न ही कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला आई टॉक, तो आप क्या बोलेंगे, आप ये मुझे बोलेंगे किस, आप किससे बात करते हो, ऐसे बोलेंगे ना। आप किससे बात करते हो ऐसे बोलोगे। मैंने क्या बोला था कि या तो किसे होगा या तो क्या होगा, है ना। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप किसे बात करते हो। सुनिएगा बात ध्यान से, बहुत ही माइनर चीज है, माइनर चीज, ध्यान सुनेंगे। मैंने क्या दो बातें बोली, ये बोला whom और एक what, इंग्लिश में whom या what। whom do you टॉक विद आप कर सकते हैं वहां पर, किसके साथ, वो चीज नहीं बोल रहा हूँ। केवल whom आना चाहिए या what आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था आई टीच, तो आपने मुझसे कहा, प्रश्न किया कि सर व्हाट डू यू टीच, मैंने कहा भाई आंसर मिल जाएगा, आई टीच इंग्लिश। आपने कहा whom do you teach, मैंने कहा आंसर मिल जाएगा, आई टीच यू। अब मैं यहाँ पे बोलूँ, समझिएगा ध्यान से, मुझे whom और what ही लगाना है, उसके साथ कुछ नहीं, विद whom भी नहीं, टू whom भी नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं, केवल whom या what। किसे और किससे में अंतर होता है, बात को समझिएगा, ठीक है। किसे और किससे में अंतर होता है, ठीक है। टू whom बोलेंगे किससे कर सकते हैं, विद whom किससे किसके साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों बातें बदल जाएंगी। किसे और किससे में अंतर होता है, इस बात को हम समझ गए। तो अब मैं बोलूंगा टॉक में, आई टॉक, तो आपने कहा, वही रूल अप्लाई किया, व्हाट लगाया। आपने मुझसे पूछा सर व्हाट डू यू टॉक, मुझे लगा क्या बात करते हो, ऐसे कहने को तो बन जाएगा क्या बात करते हो, तो मैं कुछ भी बता दूंगा। लेकिन दरअसल में ये अपने आप में आप मुझे पूछ रहे हैं कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दरअसल में वो ये चीज हो, अगर ट्रांसलेशन करेंगे सही से तो हम कर लेते हैं जो वर्ड इंग्लिश में व्हाट आर यू टॉकिंग, बट जनरली क्या होगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पे व्हाट अबाउट आ गया एक्चुअली। और ऐसे ही आप मुझसे कहें कि अ, आप बात किसे बात करते हैं, तो ये नहीं बनेगा। whom डू यू टॉक, आप ये कह सकते हैं विद whom यू डू यू टॉक, वो बन जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट और whom का आंसर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम टॉक को भी किस में रख सकते हैं,
इंट्रांजिटिव वर्ब में रख सकते हैं। तो अभी जितने लोगों ने, जैसे अनामिका जी ने और सावित्री जी ने इंट्रांजिटिव बोला, ठीक है। अब ये जो ये इस तरह के जो वर्ब होते हैं, इनमें तो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए जब जनरली पढ़ाते हैं तो इन सबको एक तरह से एक्सेप्शनल में बता देते हैं, या फिर हम कह देते हैं चलो इसको तुम एज अ ट्रांजिटिव कंसिडर कर लेना, कि ज्यादा हमें वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बट अब हम जब अब गहराई से चीजों को ले ही रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हम वहां पर क्या बात कर लेते हैं, हम वहां कह देते हैं कि चलो देख लेते हैं चीजें क्या है। तो जो आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैंने दो आपको तरीके बताए, कि जब भी आपको पता करना है कि ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है, तो सिंपल सा एक जुगाड़ बताया आपको, कि वो जुगाड़ ये है कि आप उससे पूछिए व्हाट या हु। ठीक है, जुगाड़ है, एक तरह से ट्रिक है, लगाइए, और अगर आंसर मिलता है, डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए, इनडायरेक्ट आंसर नहीं मिलना चाहिए। टॉक वाले में आपको इनडायरेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, आई डोंट नो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अतुल जी, ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आप पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट में भी कैसा ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा आई टॉक टू यू, यहाँ यू ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल लग रहा है। लेकिन अब हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्या, तो एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, एक डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट पता भी चल जाएगा, जनरली टू से लगा होगा, विद से लगा होगा, कुछ ना कुछ प्रेपोजिशन आया होगा। ठीक है, टू विद या इन, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जो प्रेपोजिशन हो और उससे पहले से लगा हुआ हो, तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वो भी कहलाएगा यार। यानी कि जो वर्ब जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा इंट्रांजिटिव। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। और उसको पता कैसे करेंगे, मैंने कहा दो प्रश्न कर लीजिए, किसे या फिर क्या, किसे या क्या, ये दो प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ आई स्लीप, अब मुझे बताइए ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। आप प्रश्न करेंगे, आप क्या सोते हैं, आप किसे सोते हैं, बताइए, इसके हिसाब से आपको आंसर मिल रहा है। व्हाट डू यू स्लीप, whom डू यू स्लीप। मैं ये नहीं कह रहा whom डू यू स्लीप विद, मैं कह रहा हूँ whom डू यू स्लीप, ध्यान दीजिए। आपको आंसर नहीं मिल रहा, राइट, तो क्या हो गया ये, इंट्रांजिटिव हो गया। ओके, तो आई होप चीजें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्लियर हुई हैं। ट्रांजिटिव मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर मिलना चाहिए। इनडायरेक्ट आंसर नहीं चाह रहा। इनडायरेक्ट के लिए तो आप बोल सकते हैं, जैसे स्लीप वाला था और टॉक वाले में मिल जाएगा, कुछ भी बना लो। वेन, सॉरी, होम में विद लगा लो, है ना। होम डू यू स्लीप विद, आई स्लीप विद माई ब्रदर। आप कहेंगे भैया यहाँ विद माई ब्रदर, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के साथ अगर आया है तो यस सर, स्लीप इज इनफ, बट क्या, बट क्या। ठीक है, स्लीप अपने आप में इंट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पर होम और व्हाट का आंसर नहीं मिलता, कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इज दैट क्लियर, लेट मी नो यस और नो। यस, अ लिटिल, अतुल जी, कृष्णो जी, यस सर। केवल दो लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, बाकी लोगों को क्या है। सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा जी, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए। ट्रांस, क्वाइट एवरीवन।
ठीक है। सॉरी, देंगे। तो यहाँ पर हमने बात की। फिर से मैं बात कर लेता हूँ। आपने कहा कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, थोड़ी नहीं आ रही है, किसी का सर ऊपर से आपसे आ रहा है, सर जी बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे, मैंने फिर से मैं अपने ट्रिक को दोहराऊंगा। पहले तो हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या है बेसिक से। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने आप को पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को मांगेगा, ऑब्जेक्ट की मांग करेगा, भाई हमें ऑब्जेक्ट दो, ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। ठीक है। सिंपल सा कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मैं बोलूं कि प्ले आई प्ले क्या अपने आप में पूरा है? आपको इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मुझे बताएं। आप खुद बताएंगे मुझे। आई प्ले, मैंने बोला मैं खेलता हूँ, ठीक है। आई प्ले, तो क्या आई प्ले की अपने आप में पूरा है या क्वेश्चन बनता है यहाँ पर? बताएंगे जल्दी से। क्या कोई क्वेश्चन बन सकता है आई प्ले में? अतुल जी बोल रहे हैं पूरा है। पूरा है तो फिर नहीं आएगा समझ में। ओके, नाउ लिसन टू मी। चलिए, आई प्ले जो है अपने आप में, नहीं क्यों खेलता नहीं है, क्यों वाला तो ऐसा तो कुछ भी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्ले है वो किसी ऑब्जेक्ट की मांग करेगा कि नहीं करेगा, इससे पूछो जाके। अब ऑब्जेक्ट की मांग करेगा पूछने के लिए मैंने दो वर्ड बताए थे आपको। दो तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि आप उससे पूछिए व्हाट, या फिर आप उससे पूछिए हूँ। ठीक है। तो आई प्ले, मैंने बोला कि मैं खेलता हूँ, मैं क्या पूछूंगा, मैं क्या खेलता हूँ। पहले सुन लीजिए, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मत लिखिए यार प्रसाद जी। मैंने बोला आई प्ले, तो मैं पूछूंगा ना मैं क्या खेलता हूँ। क्या मुझे इसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप ऑनेस्टली बताइए, बड़ी छोटी सी बात है। और क्या इसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या खेलता हूँ? वॉट डू आई प्ले, मुझे आंसर नहीं मिलेगा, अतुल जी कह रहे हैं नहीं मिलेगा आंसर। अच्छा, मतलब आप ऐसा कौन सा गेम खेलते हैं? आप प्ले को किसी और में भी ले लीजिए, मतलब खेलने से मत लीजिए। जैसे मैं बोलूं, मैं गाने बजाता हूँ, उसकी भी इंग्लिश होती है आई प्ले सॉन्ग्स। कुछ प्ले कर रहे हो वहां पे, कुछ ना कुछ आंसर जरूर होगा। ठीक है। हाँ, एक केस आप इसमें कह सकते हैं कि जिसमें मतलब प्ले की मीनिंग अलग अलग भी होती है ना। तो कहीं कहीं पे हो सकता है जहाँ पे ना हो, लेकिन जनरली क्या होगा, जनरल वे में लेते हैं हम, एक्सेप्शन नहीं लेते। जैसे मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, आई प्ले विद टॉयज, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। तो आप जरा इसमें देखिए, जब भी, जब कभी हम किसी भी वर्ब की बात करते हैं और उस वो मांग करता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको कहते हैं कि वो ट्रांजिटिव है। ठीक है। जब कभी हम बात करते हैं किसी वर्ब की और वो मांग करता है ऑब्जेक्ट की, तो हम कहते हैं वो ट्रांजिटिव है। और जब कभी हम बात करते हैं किसी वर्ब की जिसमें ऑब्जेक्ट की कोई नीड नहीं होती, कोई भी नीड नहीं होती, तब हम उसे कहते हैं कि वो इंट्रांजिटिव। ठीक है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैंने फिर से बोल रहा हूँ। जब कभी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की मांग होती है, वर्ब ऑब्जेक्ट की मांग करता है, यस, विद ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। विदाउट ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा वर्ब है विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। जब कभी वर्ब 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 विल बी आस्किंग फॉर एन ऑब्जेक्ट, वर्ब आस्क फॉर एन ऑब्जेक्ट, वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। एक वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ट्रांजिटिव। एक वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मतलब कभी भी नहीं चाहिए, उसको जिंदगी में कभी नहीं चाहिए, तो वो इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। हाँ, प्ले वाला केस में आप ये भी कह सकते हैं सर, अब बिना बोले भी तो कह देंगे कि क्या कर रहे थे, आवाज प्लेइंग। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन क्या सच में प्ले को कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए? तो मैं बोलूंगा भाई कभी दिख मत जाना ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। जैसे कोई आता है आपके यहाँ पर, आप हॉस्पिटैलिटी करते हैं, पूछते हैं वुड यू लाइक टू ईट पराठास आई हैव मेड, तो कहते हैं ना भैया हम नहीं खाएंगे पराठे। बोलते हैं, आप उनसे क्वेश्चन करते हैं डोंट यू ईट पराठा, और वो कहते हैं कि नहीं खाते हैं, तो आप ये कहेंगे कभी दिख मत जाना पराठा खाते हुए, है ना।
और बाई चांस दिख जाए तो आपको गुस्सा आएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, एक वर्ब जो कभी भी पॉसिबल हो व्हाट और होम का आंसर, जहां पर ऑब्जेक्ट आ सकता हो, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है। जैसे प्ले में था, लेकिन प्ले के साथ विद हमने लगा दिया था, तो मुझे बता सकते हैं प्ले विद, प्ले विद अपने आप में क्या हो जाएगा? प्ले विद वाला केस लग गया तो वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? थोड़ा सोचिएगा इस पे। एक तरह से हम बात कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन पर। मैंने प्ले का बताया कि आई प्ले, अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो आप कर पाएंगे। प्ले विद बोल दिए। अच्छा, प्ले विद आपको ट्रांजिटिव क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पे आपका ऑब्जेक्ट दिख रहा है, राइट। पर क्या वहां पर आपको प्रेपोजिशन नहीं दिख रहा कि विद अपने आप में प्रेपोजिशन है? टॉक टू, टॉक विद। बिकॉज ऑफ विद आई विल गेट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ विद यू आर गेटिंग ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये कुछ आपके जो वर्ब होते हैं जिनको हम फ्रेजल वर्ब भी कह देते हैं, इन सब में हमें समझना होगा, हमें समझना होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। जब कभी भी